morning, everybody. Am I audible to all of you? Okay, so let us begin with our today's session. Yes, is the screen visible to all of you? Okay, so we are going to start our session. We are going to have passages today. Okay, हमने last session में we had already done with learning the format of sentences. हम sentences form करना सीख चुके हैं. Plus, in today's session, we are going to learn about the formation of passages. छोटे छोटे sentences को connect करके we are going to form small passages that are going to help you in forming the basic of your language. Okay, so let us begin with today's session. Okay, so what picture are you seeing over the screen? Yes, what is it? Is anybody going to tell me? ये किस चीज़ की पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही है? Sorry, Earth? This is not Earth. What picture are you seeing is a monument. यस दिस इज रेड फोर्ट है ना. रेड फोर्ट क्या होता है? रेड फोर्ट इज अ मॉन्यूमेंट. ओके, जिसे हम हिंदी में लाल किला भी कहते हैं. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन सेशन नंबर आई गेस 3 और 4, जहाँ पर हमने लाल किला के बारे में सेंटेंस बनाया था, राइट? तो वहीं पर वी आर गोइंग टू हैव अ पैसेज ओवर इट टुडे. लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि लाल किला को लाल क्यों बोलते हैं. अगेन, ये है हमारा लाल किला. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाल किला यानी रेड फोर्ट. इंग्लिश में भी कॉल इट रेड फोर्ट, हिंदी में भी कॉल इट अ लाल किला. तो लाल किला क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अपेयर्स रेड इन कलर. ओके, ब्राउनिश हमें पिक्चर में भले ही दिखता है, बट अगर आप सामने से देखेंगे. हैव यू एवर सीन रेड फोर्ट? एनीबडी ऑफ यू? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली टू विजिट द लाल किला or the red fort? Yes. Sunana, have you seen the red fort? Okay, so how does it appear? कैसा दिखता है? Yes, is it like brownish or something? Yes, okay, so नैना प्लीज हैव अ सीट. जैसे देखिए, हमें भले ही पिक्चर में ये थोड़ा ब्राउनिश दिखता है, बट इट इज नॉट एक्चुअली ब्राउन इन कलर. ये थोड़ा रेड होता है. ओके, इसीलिए हम इसे रेड फोर्ट कहते हैं, लाल किला कहते हैं. एंड द रीजन फॉर दिस इज we are going to study today. Let us read the passage first. Okay, so I'm going to call up the name, and that student is coming ahead and will be reading this passage. Ready? Okay, so can we have Vaishnavi? Where's Vaishnavi? Good morning, ma'am. Good morning, Vaishnavi. How are you doing? I am fine, ma'am. Okay, so can you read the paragraph, please? This is Red Fort Student. SITUATED. देखिए, अगर कोई वर्ड हमें पढ़ना नहीं आता है तो व्हाट वुड वी बी डूइंग? हम उसे थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे. ओके, SICTU2 AT इट ED situated situated. ओके. Situated in Delhi. It is a symbol of Indian. No, Vaishnavi, you pronounce it wrong. It's not symbol, it's symbol. SYCM. Sim. BOL. Bul. Symbol. Yes. It is a symbol of Indian Mhm. country as वो It's not. Indian culture Yes. as And
and It's and HER her HERI Harry TAAGE heritage. heritage. Yes. It is also called Hmm. like Laikila because Yes. it is made up of red Hmm. red limestone, Li me no lime lam, STONE stone lime. limestone, Yes. limestone. Every Yes. year, your Not your. our It's no Vaishnavi. See, that is. It's not our. It's pronounced that as R. कैसे बोलेंगे इसको? ROUR. No, everybody. Why are you writing? आपको लिखना नहीं है. You are not going to write this passage. It is just for reading purpose. लिखना नहीं है उसको. Don't write it. Yes, Vaishnavi. Can you please continue? Yes. Every year. every year, ours Mm-hmm. prime Not ours. It R. S लगा है our लास्ट में. Hmm. our prime minister No, it's host not host. Ho. IS is hoist. Hoist. और एस भी hoist लगा लास्ट में. Yes, तो hoist. एस भी लगेगा लास्ट में वैष्णवी. Hoist. hoist Hmm. tiranga on Hmm. red fort on every Independence Day as and Republic Hmm. Day. Okay, वैष्णवी. Thank you for coming. अच्छा कोई बच्चा मुझे बता. You can take your seat, please. Yes. अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा. We had two words here. एक है Independence Day and the other one is Republic Day. So when is the Independence Day celebrated and when is the Republic Day celebrated? Yes, despite Sunana and the girl who is raising the hand at the back. I'm not seeing your face clearly, but I can see the hand. Yes, yes, over the leftmost corner. Is there any girl? I guess who is raising the hand? I cannot see her properly. Sonakshi. Is it Meenakshi? Sonakshi. Okay, Sonakshi. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, Sonakshi. Do you know when is the Independence Day celebrated? 15 August Okay. And when is the Republic Day celebrated? 26 January. Okay. Very good. Nice. Very good. Okay, class at least. Okay, Sonakshi, you can please have a seat. Thank you for coming. अच्छा इंडिपेंडेंस डे व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी कोई मुझे बताएगा इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में क्या बोलते हैं यस द गर्ल हु इज सिटिंग इन द फ्रंट देयर आर मल्टीपल हैंड्स दैट आर बीइंग रेज़न ओके Janvi. Bolo. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चे आप आर यू न्यू टू द क्लास Yes, राइट ma'am. है ना फर्स्ट डे आए हैं ना यहाँ पर Yes, Sec. ma'am. यस व्हाट्स योर नेम Ma'am, my name is Janvi Fogart. Oh, nice to meet you, Janvi. In which class do you read? I study in class 6th. Oh, you are from class 6th. Okay. Yes, Janvi, would you like to answer the question that I asked you? स्वतंत्रता दिवस, if I'm not wrong, right? Yes, आंसर तो ma'am. मैंने बता दिया है ना. Okay, Janvi, thank you for coming. Why are you sitting here today? अब से आप भी क्लास अटेंड करेंगे? Yes, Or ma'am. you are going to sit here just for today? बोलो हम भी करेंगे. Ma'am, yes, हम भी करेंगे. Okay, Janvi, you can have a seat. Thank you for showing your interest to the class.
Yes, so as Janvi said, I said instead, जिसे हमने कहा जो इंडिपेंडेंस डे है दैट इज कॉल्ड स्वतंत्रता दिवस इन हिंदी, एंड रिपब्लिक डे उसे हिंदी में क्या कहते हैं? यस, एनीबडी प्लीज स्टैंड अप ऑन योर प्लेस एंड देन से। लवली, बोलो भाई से बोलो। रिपब्लिक डे को हिंदी में गणतंत्रता दिवस। वेरी गुड, यस इट इज कॉल्ड द गणतंत्रता दिवस, राइट। यस, तो एक हमने वर्ड लिया इंडिपेंडेंस डे, दैट इज कॉल्ड द स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? व्हाट द स्वतंत्रता मीन्स? स्वतंत्रता का मीनिंग खड़े होके बोलो। आजाद। आजाद यानी आजादी मिलना, है ना? किस चीज से आजादी मिली थी हमें? व्हाट वर वी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंड व्हेन? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोलो। अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी। अंग्रेजों से। यस, वी गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम। अंग्रेजों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अंग्रेज को इंग्लिश में? यस। Okay, no problem. Your name, please? Sakshi. Okay, Sakshi. Okay, Sakshi. We got the independence. You can have a seat, please. We got the independence from Britishers. Okay, अंग्रेज जो हैं, we call them Britishers in English. ओके, तो इंडिपेंडेंस हमें मिली थी फ्रॉम ब्रिटिशर्स। और कैसे मिली थी? सी, हमारी कंट्री पे जो अंग्रेज थे उन्होंने ऑलमोस्ट 200 प्लस ईयर्स तक, 200 सालों से ज़्यादा हमारी कंट्री पे क्या किया था? कब्जा किया था। एंड देन हमें क्या मिली? उनसे इंडिपेंडेंस मिली। वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम देम। ओके, वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम। और वो दिन था कौन सा? इज एनीबडी गोइंग टू टेल मी हमें कौन से डेट पे, कौन से ईयर में एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस मिली? एनीबडी? बताओ। नव्या शर्मा। Yes, very good. We got independence from the Britishers in 1947. Yes, we got independence from the Britishers in the year 1947 on 15th of August. You can have your seat, please. Thank you. हाँ जी, तो 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली है ना। और मे बी आई हैव टोल्ड यू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट सेशन दैट वी टॉक। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। इज एनीबडी गोइंग टू टेल मी? डू यू रिमेंबर दैट? स्कूल से मैम। Am I not audible to you? क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही फिर? सुनाई नहीं? क्यों? Because you are not attentive in the class. You are not paying attention to the class. राइट अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आवाज भी आ रही है, तो आपको सुनाई भी देगा, आपको समझ में भी आएगा, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्लास। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। यस, तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? इज इन द क्लास गुड फॉर यू? आपको मजा नहीं आता है क्लास में? फिर आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं? यू आर नॉट ओके, तो आई एक्सपेक्ट अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। मैं ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैम आपको बोलेंगी मैम कुछ बोल रही है, आंसर दिस आंसर दैट, दैट इज वेरी बैड। You need to be attentive on your own. Okay, okay, so let us move ahead. What I asked you कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्या किसी बच्चे को याद है? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? एनीबडी? No. Okay, so let me
quickly bring that session for you once again. See, हमने क्या पढ़ा था? We studied बहुत ज़्यादा नहीं, but we had a brief introduction of what an constitution is. हमने बताया था कि जैसे आपका स्कूल चलता है ना, आपके स्कूल के चलने के एक प्रॉपर रूल्स है, आपका स्कूल किस टाइम स्टार्ट होगा, आपके कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपका स्केड्यूल इज ऑल डिफाइंड, है ना? मतलब आपका स्कूल कैसे चल रहा है वो सब चीज़ें लिखी लिखी तो नहीं, बट इट इज़ अ बेटर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। वो सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड्स होती हैं, है ना? वैसे ही हमारी जो कंट्री है, कंट्री इज ऑल्सो लाइक अ स्कूल और अ फैमिली, वो भी ऐसे ही चलती है बट विद अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट संविधान। क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में? संविधान क्या होता है? इट इज अ सिंपली अ बुक जिसमें हमारी कंट्री कैसे चलेगी उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो हमारी कंट्री का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। लगभग सभी डेमोक्रेसीज का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और हमारी कंट्री का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं। तो 20 जो रिपब्लिक डे है, डू यू नो रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? पर मनाते हो आप स्कूल में रिपब्लिक डे? सब मनाते हैं। क्या करते हैं रिपब्लिक डे पर? व्हाट डू वी डू? हमारी जो हमारा यस, साक्षी, यू आर सेइंग समथिंग? वर यू सेइंग समथिंग? उस टाइम भारत के कुछ रूल्स बने थे। रूल्स बने थे। यस, यू आर ऑन द ट्रैक, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। यस, वेरी गुड, नाइस ट्राई साक्षी, वेरी गुड। सेम क्लास 120। वेरी गुड, आई वॉन्ट यू टू ट्राई लाइक दिस। अगर आपको थोड़ा भी हिंट है तो यू शुड एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, जो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, वो रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, यानी हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, लागू किया गया था बेसिकली। ओके क्लास? ओके, सो यू आर इन क्लास 6 एंड क्लास 7, तो आपने कभी संविधान निर्माण वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। आई गेस इट इज इन क्लास 6, द बेसिक इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, बट नेवरदलेस दैट्स ओके, वी मूव अहेड। तो आपको 2 डेज के बारे में अब पता चला है। फर्स्ट अबाउट द इंडिपेंडेंस डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 15th of yes, 15th of August. And the second one is Republic Day, which is celebrated on yes 26 जनवरी एवरी ईयर। ओके, तो दोनों दिन मनाया जाता है। एक है हमारा स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, और दूसरा है हमारा रिपब्लिक डे, यानी जिस दिन हमारा संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। अंडरस्टूड? ओके, तो रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर दोनों ही हमारी बेसिकली हमारी प्रिंसिपल मैम, आपकी प्रिंसिपल मैम जो है वो फ्लैग होस्ट करती हैं। यस, वो क्यों करती हैं? क्योंकि इट इज डिफाइंड कि हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स यानी यस राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्र के त्योहार, है ना, वो क्यों मनाए जाते हैं? लेट्स से व्हेन वी सेलिब्रेट दिवाली, वो हमारा फेस्टिवल है। होली हमारा फेस्टिवल है। रक्षाबंधन इज ऑल्सो आवर फेस्टिवल। और अब आने वाले हैं, देयर इज गोइंग टू बी अ फेस्टिवल राउंड द कॉर्नर। कौन सा है? Yes, but before Deepavali, it is going to start from the Sunday on 15th. Yes, Navratri. We have Navratri. Then we have at the ending of Navratri, we have. बट दीपावली से पहले नवरात्रि के जस्ट एंडिंग में जो आता है, दैट इज द विजयदशमी, व्हाट वी कॉल इट, दशहरा, जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं, राइट? तो वो भी फेस्टिवल है।
तो कुछ फेस्टिवल्स हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, यानी हमारे धर्म में जो है, लाइक हमारी दिवाली है, दैट इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल, दशहरा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल, नवरात्रि इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। लेकिन कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हमारे नेशन के हैं, यानी हमारी कंट्री के फेस्टिवल्स हैं, उसे सब लोग मनाते हैं। एंड दीज आर द टू फेस्टिवल, द फर्स्ट वन वी टॉक्ड अबाउट इंडिपेंडेंस डे एंड द अदर वन इज, यस, तो ये दोनों, यस, हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं एंड एवरी इंडियन शुड सेलिब्रेट दैट दीज फेस्टिवल्स। ओके, तो ये दोनों फेस्टिवल्स पर क्या होता है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर और होस्टिंग फ्लैग्स, है ना। अभी इंडिपेंडेंस डे गया था, तो आपने क्या अपने घरों में फ्लैग होस्ट किया था, लगाया था, यस, तो बहुत सारे बच्चों ने लगाया होगा, इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग लगाया होगा, होस्ट किया होगा। तो वैसे ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, यस, द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू साक्षी, Mr. Narendra Modi. यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, राइट। तो वो हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बीट मिस्टर नरेंद्र मोदी और बीट एनीबॉडी, वो क्या करते हैं, जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, कौन से नेशनल फेस्टिवल, से इट अलाउड विद मी, यस, द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे, दोनों पर ही फ्लैग होस्ट किया जाता है, एंड दैट इज होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, एंड करंटली हु इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, यस, तो हमारे जो लाल किला है, उस पर हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हर साल फ्लैग होस्ट करते हैं ऑन द इंडिपेंडेंस डे एंड ऑन द रिपब्लिक डे। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, इस रेड फोर्ट, मैं ये जो पैसेज है उसके, उसको आपको रीड करूंगी। इसको रीड करने का पर्पस क्या है, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड हाउ टू रीड। ध्यान से सुनेंगे कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। ओके, ध्यान दीजिए कि जहाँ पर भी पंचुएशन होती है, पंचुएशन मतलब कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो यू शुड रिमेंबर दैट यू शुड बी हैविंग अ लिटिल पॉज। ओके, थोड़ा सा पॉज लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू रीड दैट। ओके, सो लेट मी रीड इट वंस फॉर यू। ध्यान से सुनेंगे, ओके, क्योंकि उसके बाद आप लोग रीड करेंगे। दिस इज रेड फोर्ट सिचुएटेड इन दिल्ली. It is a symbol of Indian culture and heritage. It is also called Lal Killa because it is made up of red limestone. Every year, our Prime Minister hoists Tiranga on the Red Fort on every Independence Day and Republic Day. Okay, class, what I took a small pause when it is a comma. जहाँ पर भी कॉमा है वहाँ पर थोड़ा सा पॉज देना है, एंड व्हेन देयर इज अ फुल स्टॉप देन यू नीड टू गेट अ पॉज टू। जब फुल स्टॉप है तभी भी पॉज देना है, एंड प्लस विद द कॉमा यू नीड टू टेक अ पॉज एज वेल। अंडरस्टूड क्लास? ओके, सो नेक्स्ट कैन वी हैव Manya. Is Manya present in the class? Okay, Manya, can you please come ahead and read the next passage? Okay, before that, let me interrupt you. Manya, can you please wait for 2 minutes? ये picture आपको दिख रही है, किस चीज़ की है? Anybody from the students? Sorry? सूर्य को जल देते हुए, यस, एंड व्हाट इज द मैन डूइंग, ही इज वर्शिपिंग द गंगा, है ना। ये जो रिवर आपको दिख रही है, दिस इज रिवर गंगा। गंगा रिवर, गंगा क्या है, इट इज अ रिवर, नदी, और हमारी इंडिया की सबसे पवित्र नदी। इट इज द मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑफ आर इंडिया, ऑफ आर कंट्री, राइट। यहाँ पर लोग आते हैं और क्या करते हैं, नहाते हैं। क्या बोलते हैं, जनरली हमारे कल्चर में ये एक मान्यता है कि गंगा जी में नहा के, गंगा जी में डुबकी लगाकर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। यस, हैव यू एवर बीन टू रिवर गंगा, हैव यू एवर टेकन अ होली डिप टू रिवर गंगा, एनीबडी ऑफ यू? Okay, no problem. Let us
Okay. If you have been here या कहीं पर भी अगर गंगा जी में नहाने गए हैं, that's well enough. If नहीं आए हैं तो आपको पक्का आना चाहिए. Okay. You should be coming here. Yes. So class, let us move ahead. Manya, would you please read the passage? This is the Yes. Yes. this is the Yes. This is the PIC pic PURE picture 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 the Ganga of of Ganga ARTI early in the morning. Yes. Mother Ganga is the most highest No, and no, no. the It's not highest. It's not highest. Read it properly. HOLI holy est holiest. holiest and the longest river ORI ori GIG origi NA TED. in, in India. No, no, no. Manya, read it first. ORI ori GIG origi Ted. Yes. What is it? Originated Yes. Originated. Originated. in India. We travel No, no. What is after India? There is a full stop. So you need to take a pause. we travel her Ganga Mata as near the No, it's not peer. Is it PAIR? PAIR लिखा हुआ है क्या? नहीं. What is it written? PER. Per. near the Per. where the HINDU. Hindu. two CUL. Kal. culture it TURE. Chur. Culture. culture it is Manya, is there a comma after culture? yes ma'am. यस. तो अभी मैंने बोला था कि जहाँ पर कॉमा होता है तो यू नीड टू टेक अ लिटिल बिट पॉज, राइट? तो इसे कैसे पढ़ेंगे? एज पर द हिंदू कल्चर इट इज बिलीव. लिया मैंने कल्चर के बाद थोड़ा सा पॉज लिया. यू नीड टू टेक द सेम पॉज. ओके, अब रीड कीजिए. एज पर दोबारा रीड कीजिए. It is believed that saint that fish head all by नो, रिपीट फ्रॉम इट इज बिलीव that it is it is believed believed that since that gets gets washed off by bathing egg in Ganga. Okay, okay, Manya, nice try. But you need to improve a little bit. Very good. Okay, so class, you want me to read it once again? देखिए, समझ में आ रहा है पैसेज? जो should I translate it in हिंदी? पैसेज समझ में आया? या मैं हिंदी में से एक्सप्लेन करूँ आपको? Okay, so this is. अब ध्यान से सुनेंगे. How am I reading? Okay.
दिस इज द पिक्चर ऑफ गंगा आरती इन द मॉर्निंग, यानी दिस इज, ये है द पिक्चर, किसकी पिक्चर है? गंगा आरती इन द मॉर्निंग, यानी सुबह की गंगा आरती की ये क्या है? पिक्चर है। रिवर गंगा इज मोस्ट होलीएस्ट, होली, होली का मतलब क्या होता है? पवित्र, और होलीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा पवित्र। ओके, तो रिवर गंगा इज द मोस्ट होलीएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ओरिजिनेटेड का मतलब क्या होता है? उद्गम। ओके, उद्गम यानी जब भी रिवर निकलती है तो वी से इट ओरिजिन, उद्गम होता है उसका। ओके, तो रिवर गंगा इंडिया में ही उद्गमित होती है। कहाँ से उद्गमित होती है? एनीबडी नोज दैट? गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से उद्गमित होती हैं? नो, नॉट फ्रॉम हरिद्वार। यस, वेरी गुड, नाइस ट्राई। व्हाट इज योर नेम? My name is Sharya Kushwaha. Sorry. My name is Sharya Kushwaha. Okay, Shalja, nice name, and it's very good for me to listen that you know where the river Ganga is originated. यानी रिवर कहाँ से निकलती है? प्लीज हैव ए सीट, शारजा। यस, तो रिवर गंगा कहाँ से उद्गमित होती है? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री। ओके, गौमुख ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ होता है जहाँ से रिवर निकलती है। ओके, कोई भी रिवर है, एनी रिवर, कोई भी, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी ओरिजिनेट हो रही हो, वो किसी ग्लेशियर से निकलती है। एक बहुत बड़ा पहाड़ टाइप का होता है, पहाड़ नहीं होता है बेसिकली, देयर इज अ फ्रोजन आइस एंड दैट इज कॉल्ड द ग्लेशियर। उसे हिंदी में इंग्लिश में ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर से ही रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, और हमारी रिवर गंगा जो है, गंगा माता हमारे हरिद्वार में जिसे बोलते हैं, गंगा माता का ओरिजिन कहाँ से होता है? दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री। ओके, just repeat with me, where is it originated? It is originated from Gomukh Glacier, Gangotri. Yes, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम गौमुख ग्लेशियर, गौमुख। यस, गौमुख का मतलब क्या होता है? जो ग्लेशियर है, गौमुख यानी गऊ का मुख, गाय के मुंह जैसी शेप का वो ग्लेशियर है, दैट्स व्हाई वी से गौमुख। एंड गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री, वहां से हमारी रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है। ओके, लेट अस मूव अहेड। वी कॉल हर गंगा माता, एज आई सेड कि हमारे हरिद्वार में, इवन एट डिफरेंट प्लेसेस, बट हमारे यहाँ पे गंगा नहीं बोलते हैं, हम गंगा माता ही बोलते हैं, या गंगे माता। वी कॉल हर गंगे माता। As per the Hindu culture, it is believed that sins gets washed off by bathing in Ganga. यानी गंगा जी में नहा के पाप धुल जाते हैं। Sins, write is as the word of the day. Class, write it SINS, sins. अगर एक है तो that is sin, एक से ज्यादा है तो sins। Sins का मतलब क्या होता है? पाप। ओके, SIN, sin मतलब पाप। Okay class, write it SIN, sin, and then dash करके write its meaning, which is पाप। It's sin, 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 and हिंदी में we call it पाप। प पे आ की मात्रा, प, पाप। Done? Okay, so let us move ahead with the next passage. Yes, what is it, class?
Yes, everybody knows this. That is, it is the picture of samosa. किसको समोसा अच्छा लगता है? Please raise your hand. Yes, सबको अच्छा लगता है. सब समोसा सबको अच्छा लगता है. Okay, class, please down your hands. Yes, समोसा. तो समोसा क्या है? समोसा वी ऑल नो कि हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आता है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? आज समोसे खाने को मिलेंगे, राइट? यस, तो क्लास अब हम समोसे के बारे में एक पैसेज पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू रीड अ पैसेज अबाउट समोसा. सो फॉर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Jasmeet. Where's Jasmeet? Yes, ma'am. Jasmeet, can you please come ahead and read the passage, which is this. Good morning, ma'am. Good morning, Jasmeet. How are you doing? I am fine, ma'am. Okay, Jasmeet, please read the passage. This is the picture of samosa. Samosa is a famous snack of India. Not It's snacks. Is it snacks? Snacks. snack. Yes. Yes. It is made of ready-made, Mm-hmm. R-E, ready-made, no, no, R-E, F-I-N-E-D, refined. refined Hmm. wheat, wheat Hmm. flour. Hmm. It's not flour. Jasmeet, please wait for a minute. It's not flour. It's flour. What is it? Flour. 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 Okay. और flour का मतलब क्या होता है? Flour. Flour. It is. Yes, you are saying something. टमाटर. Yes, very good. और यहाँ पर refined wheat flour. Wheat flour का मतलब क्या होता है? Refined wheat flour means मैदा. Okay. फ्लावर का देखिए, सी क्लास, देयर आर टू वर्ड्स हियर. पहला है फ्लावर. फ्लावर का मतलब होता है आटा. ओके. ओके क्लास, आर यू अटेंटिव इनफ और नॉट व्हाट आई जस्ट सेड? इस क्लासेस से डन. यस, फ्लावर मतलब क्या होता है? फ्लावर मतलब आटा. लेकिन जब हम बात करते हैं रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर का मतलब होता है मैदा. ओके. यस, जस्मीत, प्लीज रीड इट वंस अगेन. इट इज मेड Samosa. अप. It's ओके. यस. it it is made of refined wheat flour, maida, Very and good. its stuffing is Yes. generally made up of potatoes. Okay, It Jasmeet, please wait a minute. It's not generally, it's generally. Okay, generally made up of. Yes. it is mostly served served Yes. with Very good. chutney chutneys of Yes. mint and CO. सी व्हाट आई टोल्ड यू क्लास. अगर आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आता है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे तोड़ तोड़ के पढ़िए. ठीक है. व्हाट इज इट रिटर्न? CO. को. RI. री. कोरी. AN. एन. TER. क्या बना? coriander. Yes, coriander. It's coriander. Yes. Coriander, which adds both taste and flavor. No, no, it's flavor.
flavor into it. Yes, very good, Jasmeet. Very good. आपने बहुत अच्छे से इस पैसेज को पढ़ा. थैंक यू फॉर कमिंग. अब ओके क्लास, आई डोंट थिंक दैट मुझे इस पैसेज को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, और शुड आई एक्सप्लेन इट? एक्सप्लेन करना है या समझ में आ गया है? ओके, सो इसको आप नोट करेंगे. अनदर वर्ड फॉर द डे, व्हाट वी कॉल मैदा इन इंग्लिश. वी स्टडीड व्हाट वी कॉल पाप इन इंग्लिश. वी कॉल इट sin. And what we call maida in English, we call it refined wheat flour. Okay, ये है refined wheat flour. इसको नोट कीजिए क्लास, प्लीज नोट इट. इन द वर्ड ऑफ द डे, मैदा. मैदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफाइंड व्हीट फ्लावर. केवल ये नोट करना है कि मैदा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है. रिफाइंड व्हीट फ्लावर. Done? Everybody? Okay, please take your time and complete your work. Okay, class, is it done? Done? Okay, class, who is still writing? Please, can you please raise your hand to the person who is still writing? Maida. Maida in English, refined wheat flour. Done? Done, class, done? Everybody? Okay, class. So we shall move ahead. That's it for today's session. We have only 3 passages today. We are going to take more passages tomorrow, in which I'm going to call another student with us. Okay, class. So that's it for today. When is your last exam, class? 19? Okay. Okay, तो हम मिलेंगे कल के सेशन में. Did you enjoy today's session? Okay, तो कल भी मिलेंगे with another passage in which we are going to learn another new thing. Fine, class? Okay. Tomorrow is your holiday. Okay, then we are going to meet on Monday. Okay, class, to see you on Monday. Goodbye. Okay, goodbye, class.